Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unheard Poetry. Today I am going to present a poem on the life of a girl who had been a victim of rape. So yes, if you like it then please share करें and subscribe करें. A cute little angel taking birth without knowing the reality of this planet Earth, opening her small eyes in her mother's lap, smiling as if she is safe and again going for a nap, feeling the first love of her life by holding her father's hand tight. Each and everywhere her happiness was rife. Like every other girl, she was full of delight. The most important part of hers, her companion, her best friend, her brother, always tried to defend. She kept kidding and arguing with her siblings, but never ever expected any sort of blessings. Moving out of her small world without knowing the words that being her a girl could be the biggest curse, taking her steps ahead and creating her own unique ways, making friends, giggling, and enjoying her moment across the base. After seeing and observing the countryside, she came to know the people's strong intention that being her a girl, she has no right, and here, there, everywhere, there is lot of dejection. Overcoming all these things, she reaches a position, but then too, there are many people for her demolition. Just one night, destroy and ruins her life, which is a serious crime rape. And after that, she is only seen in recorded videos and tape. She has to fight alone for her justice with everyone, her goddess, her love, and even her protectors make their faces turn. Her whole happiness is converted into a disaster, but no one cares and their life moves even much faster. So, girls, never stop playing with your curls. Be courageous and lead a way out of this world. Never stop living your dreams and try to excel. लेट दी वर्ल्ड नो द पावर ऑफ ए गर्ल. थैंक यू. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू. द मैसेज विच आई वॉन्ट टू स्प्रेड थ्रू दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ दैट कि आज के टाइम में हमारी कंट्री इंडिया में रेप केसेस आर इंक्रीजिंग डेली एट ए रैपिड रेट. So my concern is that how we can stop this. मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए या इसको कम करने के लिए. आई नो कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. वी नीड अ होल सिस्टम, बट एटलीस्ट वी कैन इनिशिएट, वी कैन ट्राई. आज इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में you can check the rate, 94% culprit are related to that rape victim's family, whether close friends है, रिलेटिव है या नेबर है. तो मैक्सिमम केसेस में फैमिली रिपोर्ट नहीं करती है. दे नेवर रेज देयर वॉइस, दे नेवर प्रोटेस्ट because of the shame, because of the insult they will get from others. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी लड़की ने या द विमेन हु हैज सफर्ड दिस रेप, उसकी कोई गलती नहीं है, तो क्यों चुप बैठने का. अगर गलत हुआ है तो गलत के अगेंस्ट आपको खड़ा होना है, आवाज़ उठानी है, ताकि जो कल्प्रिट है उसको दोबारा मौका ना मिले फिर से ये स्टेप उठाने का. हम आवाज़ नहीं उठाते हैं इसलिए द कल्प्रिट थिंक्स अरे ये तो कुछ करने नहीं वाले, तो ही गेट्स एन अनदर चांस टू मोलेस्ट समवन, टू मेक समवन एल्स हिज विक्टिम.
तो हमारा काम बस इतना है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है अपनी। एक एक ने तो स्टार्ट करना है, एक आएगा, एक को देख के दूसरा आएगा, एंड वी विल डेवलप अ टीम. What is our motive? What my concern is to to feed a state of terror in that culprit mind, कि अरे नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसा किया किसी के साथ तो ये लोग तो मुझे मार डालेंगे. वो स्टेट ऑफ टेरर, स्टेट ऑफ फियर आज भी हमारे कंट्री में किसी कल्प्रिट के मन में या दिमाग में नहीं है. सो दे आर ईजली रोमिंग एनी वेयर, दे आर फ्री टू डू एनी थिंग विथ एनी गर्ल और एनी वुमेन. बट सिस्टम कुछ नहीं कर रही तो ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे. इसमें आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी फ्रेंड की कोई गलती नहीं है. उसको आप ऐसा फील मत कराओ दैट इज शी इज़ एट द फॉल्ट कि उसके साथ ये हुआ. डोंट जज हर, डोंट क्रिटिसाइज हर कि अच्छा तूने ऐसे छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए तेरे साथ उसने रेप किया, या तू इतना ओवर फ्रेंडली रहती है सबके साथ इसलिए तेरे साथ उसने ऐसा किया. ऐसा नहीं है. हमारी कंट्री में ऐसी बच्चियों के साथ भी रेप हुआ है जो बोल नहीं सकती हैं. तब आप क्या बोलोगे उनके लिए? सो यस, इतना होने के बाद भी अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है. गलत सहना गलत है, उससे ज़्यादा गलत को देखकर चुप बैठना उससे भी ज़्यादा गलत है. सो प्लीज़ आगे आइए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए. एंड जो विक्टिम है, don't make her feel that she is at fault. Support her, stand by her side, उसको मोटिवेट करो. Let her regain her confidence, her self respect. Make her stand in front of the society again so that she can fight, and make her believe that the whole family, friends are there to support her. उसको सिर्फ न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे टेलीकास्ट करना इज़ नॉट अ सपोर्ट. वो तो मीडिया, आपको पता है कैसी पेड मीडिया है. वो सिर्फ टीआरपी के लिए ये काम करती है. उनका टीआरपी हाई हो गया, दे विल लीव दैट केस. ये उनका कंसर्न नहीं है, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए. बट वी एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन, वी कैन टेक सम स्टेप कि हमारे साथ ऐसा या हमारे आसपास के लोगों के साथ ऐसा ना हो. ये चीज़ें बाहर नहीं आती है इसलिए हमें नहीं पता चलता है कि रेप केसेस हो रहे हैं. बट इफ़ यू go to the news, गूगल और अदर रिपोर्ट्स, डेली हमारी कंट्री में 25 से 30 लड़कियों के साथ किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में रेप हो रहे हैं. और हमें इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि कोई इसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा है. नो वन इज रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द कल्प्रिट, एंड सो कल्प्रिट इज easily roaming everywhere and doing whatever he wants. So society, please, अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई रेप विक्टिम है तो डोंट जज हर कैरेक्टर, डोंट गिव a character certificate based on that, don't criticize her. ये टाइम है, she needs your support. She needs someone who can raise the voice against the culprit. So आप उस विक्टिम को इतना मजबूत बनाएं, उसके साथ खड़े रहें ताकि वो फिर से सोसाइटी को फेस कर सके विदाउट एनी फीलिंग ऑफ शेम और इंसल्ट. Yeah, that was my concern.
ये पोएम आई हैड रिटन इन 2013 आफ्टर दैट निर्भया's रेप केस, बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था टू शेयर माई थॉट्स एंड फीलिंग ऑन दिस, बट नाउ आई हैव चूजन दिस platform so that I can share, or I can share my thoughts or views related to anything. So आज मैंने ये पोएम अपनी आपके सामने रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि एक्चुअली गर्ल्स की जर्नी क्या क्या कैसे होती है, रेप के बाद कैसे हो जाती है. सो प्लीज़ आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, देयर इज नो सच कंपल्शन, इट्स ऑन यू, बट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे. और अगर हज़ारों लाखों करोड़ों लोग में एक भी इंसान मेरे ये वीडियो को देख के इंस्पायर होता है या मोटिवेट होता है या समवन चेंजेस हिज माइंडसेट और थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी बाय वाचिंग माय वीडियो, it will be a great achievement for me. So please, yes, share this video as much as possible. Next thing, in short, I want to share is, dear parents, make your daughters, your sister, a warrior, a bold, strong, beautiful women. Turn them into a beautiful and strong women. वो ज़माना गया कि we wanted to see a soft and delicate girl. No, this is the time we should have hard and strong girl. आप उसको फिजिकली प्रिपेयर कीजिए, एजुकेशन के साथ साथ कराटे क्लासेस, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो सिखाइए, बिकॉज इट इज़ मस्ट फॉर इन टुडेज वर्ल्ड. make her live her dreams. Don't bound her to any limits. Don't restrict her to any limits कि नहीं तू लड़की है, तू ऐसा नहीं कर सकती, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा. No, let her live her dreams. You as a parent assure them कि आप उसको फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो ताकि वो इस सोसाइटी को फेस कर सके. कोई उसको गलत नज़र से देख रहा है, कोई उसको गलत इंटेंशन से टच करना चाह रहा है, कोई उसको मलेस्ट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, आप उसको स्ट्रॉन्ग इतना बनाइए कि वो पलट के मुंह तोड़ जवाब दे उस इंसान को. But don't bound her to any limits. In fact, teach your son or brother or friend to respect a girl, not to judge a girl. Support her no matter what. If she is right, then support her. और उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़े रहें. And parents, make sure और अपनी डॉटर को श्योरिटी दिलाएं that you are with her. A person can win or conquer the whole world if their parents and their family are standing behind them to support them. So yes, make your daughter a girl who is bold enough to face this society. Let her be her papa's princess, your princess, but for world she should be a Powerpuff Girl, a superwoman who can face any situation boldly. So yes, thank you.